Psalm 91. भजन संहिता 91। Sorry, 90. Sorry, 90. 90 भजन संहिता। Verse 12 says, So teach us to number our days that we may present to thee a heart of wisdom. उसका 12 वचन, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। Previously, the verse 10 also says, As for the days of our life, they contain 70 years, or if due to strength, 80 years. Yet their pride is but labor and sorrow, and soon it is gone away, we fly away. उसका 10वां वचन, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। See, God has appointed for each you and me a certain time to stay on this world. तो परमेश्वर ने हमें और आपको नियुक्त किया है कुछ समय के लिए इस दुनिया में रहने के लिए। Nobody can stay here forever. तो कोई भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। Who is the man who stayed the longest in this world? इस दुनिया में सबसे लंबा आयु जिया हुआ व्यक्ति कौन है? I think you all know. It is the Old Testament. It is called Methuselah. तो वो पुराने नियम में है, उनका नाम है मेतुशलाम। He was the grandfather, I think, of Noah. तो वो नोवा के परदादे थे। And he longest. ब्रदर योर वॉइस इज He lived the ब्रेकिंग। Hello, he lived the longest time. उन्होंने सबसे लंबी आयु जिया है। But after the flood, people began to live lesser and lesser. And even now, a person, the average age of a human being, he lives on the earth around 70 to 80 years. तो उस जो बाढ़ आया था उसके बाद लोग कम से कम आयु जीने लगे, और आज की जो हालात में अभी के जो मनुष्य 70 नहीं तो 80 साल तक जीते हैं। So many of us have already completed half our life. तो हम में से कई लोगों ने अपनी आधी जो जीवन है वो पूरी कर ली है। So that is why this psalm is written by Moses, and he said, Lord, teach me to number my days that I may present to thee a heart of wisdom. इसीलिए ये जो भजन संगीता है मूसा के द्वारा लिखा गया है, वो कहते हैं कि प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं अपने दिन को गिन सकूं और समझ ले कि मैं उसमें मैं बुद्धिमान हो जाऊं। So numbering our days means, say, Lord, this day that you have given, this day will never come back to me. It is gone forever. तो अपने दिन को गिनने का अर्थ ये है कि आज का दिन प्रभु आपने मुझे दिया हुआ है, ये दिन गया तो ये वापस कभी आने नहीं वाला है। ब्रदर आई कुड नॉट हियर योर वॉइस। What is the problem? Yeah, there is some issue, I think. You cannot hear my voice? No, I cannot hear my voice. In between it was gone. Okay. So it's not the Wi-Fi problem. So God has given us an opportunity to make the best use of every day that God gives us. तो परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि हमें जो परमेश्वर ने एक एक दिन दिया है उसको हम उत्तम तरीके से उसका उपयोग हम करें। If we fear God and do what He wants us to do, then we get wisdom. और जब हम परमेश्वर का भय मानकर वो जो हमसे करवाना चाहते हैं वो हम करेंगे तो हमें ज्ञान मिलता है। But if we do what we like, we just do a lot of foolish things and then waste that day. अगर हम बहुत सारे जो ऐसी चीज करेंगे अपने को जो पसंद है वैसा, और उस दिन को जो है मूर्खता की तरह हम खो देंगे। And our days are just flying away just like so fast. हमारा जो दिन है वो उड़ता चला जाता है बहुत ही जल्दी। We're already in the second month. 1.5 months have completed in this year. तो ये साल में हमने लगभग 1.5 महीना पूरा कर लिया है। So we must really have the fear of God in our own life and say, Lord, I want to make the best use of this day that you have given us. तो परमेश्वर का भय जो है हमारे जीवन के प्रतिदिन में हमारे पास होना चाहिए, और हमें कहना चाहिए प्रभु आज का दिन आपने जो दिया है मुझे उसको पूरे उत्तम तरीके से उसका उपयोग करना है। God is not interested in thinking about the year and 10 years. He is interested in today, the year, the day that God has given us. तो परमेश्वर जो है 10 साल या साल जो बीत गया उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उन्होंने आज जो हमें दिया है वो दिन में वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। He also said not to worry about tomorrow, because he said tomorrow you don't know whether you'll be alive or dead. और उन्होंने ये भी कहा है कि कल के बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कल जीवित भी रहोगे या मर जाओगे।
we have to be concerned or anxious about today. तो हमें फिक्र करना है और चिंता करना है सिर्फ आज के लिए, How we are going to live, how we are going to behave in front of the Lord. तो हम कैसे जिएंगे, कैसे परमेश्वर के सामने बर्ताव करेंगे, इस विषय को लेकर। And then when we have the fear of God, we'll gain much wisdom. और जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तो हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। And what is wisdom? और ज्ञान क्या है? First of all, wisdom is pure. सॉरी ब्रदर। Wisdom is purity. तो जो ज्ञान जो होता है वो शुद्ध होता है। Purity means holiness. शुद्धता का अर्थ है पवित्रताई or love. या प्रेम। Then there is peace, फिर शांति होती है, gentleness, और फिर निर्मल कोमलता, and easy to get along with other people. दूसरे लोगों के साथ बहुत ही जल्दी से घुल मिल जाना। Lot of good fruits and good work. और बहुत ज्यादा अच्छे फल और अच्छे काम। That is living as Jesus lived. तो वही होता है यीशु मसीह के समान एक जीवन जीना। The character of Jesus, that we have to gain. तो वो यीशु मसीह का एक चरित्र है जो हमें पाना है। So that is why we must, when we are careful about every day, then we will not allow things to get wasted. तो जब हम हर दिन को लेके बहुत ही सावधान रहेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई भी दिन जो है बर्बाद ना हो। There are so many troubles and problems in our life. Through those things, we get the wisdom of God. तो बहुत सारे परेशानी, कठिनाई, समस्या हमारे जीवन में आती है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। Get the wisdom not by reading books or by reading the Bible or listening to messages. तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा बाइबल पढ़ने के द्वारा या संदेशों को सुनने के द्वारा या कोई पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा। From that we get knowledge. तो उसके हमें बुद्धि मिलती है। What is the difference between knowledge and wisdom? What is the right word for wisdom? ज्ञान। Gyan is knowledge, I think. Is it very correct, or is it buddhi? Buddhi. What is it? Buddhi is wisdom, or Gyan is Buddhi is wisdom and Gyan is knowledge. Vivek, sir, Vivek. And Vivek is conscience. Gyan is, I think, knowledge. Gyan is knowledge and wisdom is buddhi, if I'm not wrong. Correct. So Gyan, तो ज्ञानी होता है. People are very knowledgeable in science and knowledgeable in music and all those things. That is Gyan. But buddhi is wisdom. बुद्धि जो होता है वो विजडम होता है। Yeah. So that is about God. That is the nature of God. तो वो परमेश्वर का एक स्वभाव है। It is that these are the things that God wants in each one of our lives. तो यही चीजें हैं जो परमेश्वर हम हर एक के जीवन में चाहते हैं। That's why God sends you and me different types of problems in our own life. इसीलिए परमेश्वर हमारे हर एक के जीवनों में अलग अलग तरीके की परेशानियां भेजते हैं। We wonder why these problems have come. तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये सारी परेशानियां क्यों आई हैं। Practical problems. जो प्रतिदिन की जो समस्याएं, Practical problems in money matters, in adjusting with people. So God is wanting to speak to us something about humility and how to behave as Jesus behaved. जैसे कि परेशानियां होती है पैसों के मामले में या तो फिर लोगों के साथ व्यवहार करने के विषय में, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन बातों को सीखें कि हम कैसे परमेश्वर की इस बुद्धि को पाए और यीशु मसीह कैसे उस समय बर्ताव करते थे, वैसे बर्ताव करने के लिए हम सीखें। Today I was going to pay some bill and I was finding it so difficult for many days to pay that bill because of this internet problem. I was wondering why this delay has happened. तो मैं आज इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने गया था, तो इतने दिन से वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भर नहीं पा रहा, तो मैं सोच रहा था इंटरनेट की वजह से वगैरह, तो ये सारी समस्या क्यों हो रही है ऐसे मैं सोच रहा था। But then the Lord is teaching me patience. तो परमेश्वर मुझे यहाँ पे धीरज धरना सिखा रहे हैं। The first character of wisdom, love is patience. तो पहला जो चरित्र है प्रेम का वो बुद्धि है। So that we have to wait, sometimes come once, sometimes second time, third time. या हमें इंतजार करना पड़ता है, या तो पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार। We don't like, we want to get our work done quickly. तो हमें ये सब पसंद नहीं है, हमें सब कुछ जो हमारा काम है वो जल्दी होना चाहिए। So but God knows what is wrong with us and He wants to teach us His patience. तो परमेश्वर जानते हैं कि हमारे साथ क्या गलत है और वो हमें सिखाना चाहते हैं धीरज धरना। He wants us to depend upon Him. वो चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर हों। So in this short life, we don't know how long we will live. तो इस छोटी सी जीवन में हम नहीं जानते कि हम कितना दिन तक जीने वाले हैं। The Apostle Paul also did not know how long he will live. प्रेरित पौलुस को भी ये बात नहीं पता थी कि वो कितना लंबे आयु तक जिएंगे। When he was going on his missionary journey, he said, "I want to go to Spain. I want to go this."
he was writing in his letter, but God did not allow him to go to Rome till the last moment, and till the last one, that is the time he was about to die. तो हम देखते हैं जब वो प्रेरित पौलुस मिशनरी के लिए जाना चाहते थे हर एक जगहों पर, जैसे कि रोम में, स्पेन में, तो उनके पत्रियों में तो वो लिखते थे, परंतु उनके अंतिम दिनों में भी वहां पे वो जा नहीं पाए. He wrote a letter to Romans, तो वो रोमियो को उन्होंने पत्री लिखी, but he had never met the Roman Christians. परंतु रोमियो में जो मसीही थे उनसे वो नहीं मिले थे. He knew some of them, उनमें से कुछ लोगों को वो जानते थे, but he had not visited Rome at all. तो परंतु वो रोम की उस जगह पर कभी गए ही नहीं. The only way he got to go to Rome was when he was put as a prisoner and taken to Rome. तो एक ही बार जो उनको वहां पर जाना हुआ, वो जब उनको बंदी बनाकर वहां पे बंदी गृह में डाला हुआ था तभी. But he knew the will of God, and he was happy that God is leading him the right way every day of his life. तो वो जानते थे परमेश्वर की इच्छा क्या है, और खुश थे कि परमेश्वर उन्हें सही राहों की ओर उनकी अगुवाई कर रहे हैं प्रतिदिन में, Because he feared God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना. That is why God gives us these days, that we must number our days, and so that we may grow in the grace of God in our lives. इसलिए परमेश्वर ये दिन हमें देते हैं ताकि हम अपने दिनों को गिनते रहें और परमेश्वर की इस बुद्धि में हम प्रतिदिन बढ़ते जाएं. And I always think there are two important days in all our life. तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि हमारे जीवन में दो काफी महत्वपूर्ण दिन हैं. Which are the most two important days? सबसे महत्वपूर्ण वो दो दिन कौन से हैं? What will be your choice? आपका चुनाव क्या होगा? Many people will say it is my birthday. कहीं लोग कहेंगे कि वो मेरा जन्मदिन है. Some people will say it is my marriage day. कुछ लोग कहेंगे कि वो मेरा शादी का दिन है. Or somebody will say it is New Year day. कुछ लोग कहेंगे कि वो नया साल का दिन है. Or Christmas day. या तो फिर क्रिसमस का दिन है. सॉरी. Or Mother's Day. या तो फिर माँ का दिन है. Or Father's Day. या तो पिताओं का दिन है. Or my child's birthday. या तो फिर मेरे बच्चे का जो जन्मदिन है वो. No, but these are not the important days. परंतु ये सब कुछ महत्वपूर्ण दिन नहीं है. Which are the two important days? सबसे महत्वपूर्ण दो दिन वो कौन से हैं? We have also said it many times in our church. तो हमने कई बार अपनी कलीसिया में इस बात को कहा है. From the Bible itself. बाइबल में से ही. The first important day will come to is the judgment day. तो सबसे महत्वपूर्ण एक दिन वो है जिस दिन हम न्यायासन के सामने आएंगे. So that is written in 2 Corinthians chapter 5. वो लिखा हुआ है 2 कोरिन्थी उसके 5 अध्याय में. There are many other verses, but we are turn to only two. बहुत सारे वाक्य है उसमें, परंतु दो वाक्य की ओर हम फिरेंगे. 2 Corinthians chapter 5. Verse 10. 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 10वां वचन. We must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for the deeds done in the body, according to what he has done, whether good or bad. क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं हो पाए. This is written by the Apostle Paul is saying this. तो प्रेरित पौलुस ने ये लिखा हुआ वो कह रहे हैं ये. He said that he also has to stand before God's judgment seat. तो वो कहते हैं कि उनको भी परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना है. All the decisions in our life, what we have done, will be examined by the Lord. तो जो भी निर्णय अपने जीवन में हमने लिया है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा परखा जाएगा. And if it is done for the glory of God, then God will appreciate it. अगर वो सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए किया हुआ है तो परमेश्वर इस बातों को सराहेंगे. If it is done for a selfish motive, then the Lord will reject it. अगर हमने खुद की स्वार्थीपन से ये सब कुछ किया है तो परमेश्वर इन बातों को नकार देंगे. It is quite possible that unconsciously we may be doing some bad thing or some good thing. तो हो सकता है कि अनजाने में हम कुछ अच्छे काम भी करते हो या बुरे काम भी करते हो. Verse 11 says, therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men. तो इसलिए 11 वचन में लिखा हुआ है, सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं. But we are made manifest to God, and I hope that we are made manifest also in your consciences. और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा.
what we have to do, he said, Lord, we are telling people have the fear of God and live with a good conscience every day. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हम लोगों को ये समझाते आ रहे हैं कि परमेश्वर का भय माने और अच्छी विवेक के साथ अपने दिनों को बिताएं. Whatever you do, even doing now, do it for the glory of God. जो कुछ भी आप करते हो, आप अभी भी करते होंगे, सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करो. Don't do for your selfish motive or your desire what will help you only. तो सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छा के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए, जो सिर्फ आपको ही मदद करेगा, उसके लिए ना करें. The Holy Spirit will point out these things तो पवित्र आत्मा इन सारी बातों को आपको दिखाएगा to our conscience. और आपके विवेक को. That is where our heart lies, and the Spirit speaks to us in our conscience. तो वही हमारे हृदय होता है और आत्मा हमारे विवेक के द्वारा हमसे बात करता है. As we grow closer and closer to the Lord, our conscience becomes more and more sensitive. और जितना हम परमेश्वर के और निकट होते जाएंगे, हमारा विवेक का क्षेत्र जो है और वो समझदार होते जाता है. And then when we see there are some wrong motives in our life and wrong attitudes, we cleanse it. और जब हमें पता होता है कि कुछ गलत मनसा या गलत मकसद हमारे जीवन में है, तो हम उसे साफ कर देते हैं. When we cleanse it, then on the final day when we stand before God, God says, as far as your conscious area is concerned, you have done the right thing. There's nothing more I have to judge you about. अगर हम उन सारी चीजों को शुद्ध करते जाएंगे और जब आखिरी में परमेश्वर के न्यायासन के सामने हम खड़े होंगे, तो परमेश्वर कहेंगे कि आपके विवेक के क्षेत्र में जहां तक आपको पता है, वहां तक आपने सब कुछ शुद्ध किया है, सब कुछ साफ है वहां पर. So we will always have to stand with a clear conscience both before God and before man. इसलिए हमेशा हमें एक शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने रहना है. There's another verse in Romans chapter 2. और एक वाक्य है रोमियो उसके 2 अध्याय में. Verse 15 and 16. उसका 15 और 16 वचन. This speaks about the Gentiles who have their conscience. Says verse 15, in that day, the work of the law is written in their hearts, their conscience bearing them witness, and their thoughts alternately accusing or defending them. On the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा. So there's one day when all the secrets that you have in my heart are going to be revealed. तो एक दिन ऐसा आएगा जहां पर सारे जो गुप्त बातें हमारे हृदय में, मेरे और आपके हृदय में है, सब कुछ वो खुला होगा. God will judge the secrets. तो परमेश्वर हर एक गुप्त बातों का न्याय करेगा. What were the thoughts going into your mind and what were your attitudes towards people? All those motives God will judge. तो तुम्हारे दिमाग में क्या सब कुछ चल रहा था और तुम्हें लोगों के प्रति तुम्हारी जो मनोवृत्ति थी वो कैसी थी, ये सारी बातें परमेश्वर उस दिन न्याय करेंगे. Why did you do this gospel work? Why did you do a ministry? For what? Whose glory did you do it? आपने ये सुसमाचार की जो सेवकाई है या तो फिर सेवकाई, ये सब कुछ आपने किसकी महिमा के लिए आपने और क्यों किया है? Then the Lord, then we have no other answer. But if we cleanse ourselves every day, then we have nothing. God will say everything that you in your conscience area, you did it to glorify God. अगर हम अपने आप को इन सारे क्षेत्रों में शुद्ध रखेंगे तो परमेश्वर उस दिन कहेंगे कि तुम्हारे विवेक का क्षेत्र की जहां तक बात है, आपने सारी बातों को वहां पर अपने आप को शुद्ध कर लिया है, साफ रखा है. So there is always a final exam for all of us. तो हम सभी के लिए एक आखिरी परीक्षा होने वाली है. When we know the portion what God is going to judge us, then we'll be careful that all our thoughts and attitudes and hidden areas, our secrets are correct in the sight of God. तो जब हमें पता होगा कौन से पाठ परमेश्वर हमें हमारे जो है विषय में परखने वाले हैं, तो हम सारी बातों को लेकर हमारे जो जितने भी मनोवृत्ति है, हमारे जितने भी विवेक में जो भी हमारे जितने भी जीवन के क्षेत्र है, सभी बातों को हम शुद्ध करते रहेंगे. So it is quite possible that a brother or sister can get 100% marks. तो हो सकता है कि एक भाई और बहन जो है उनको 100% जो है अंक मिल जाए. For all that he did or she did was for the glory of God. क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने बहन ने या भाई ने किया हुआ है, सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए किया है. All had pure motive. तो उनके पास सारे जो मनसा था उनका वो शुद्ध था. As
far as the Holy Spirit has shown them. जितना तक पवित्र आत्मा ने उन्हें दिखाया था उतना तक। So that is why we have to cleanse ourselves whenever the God shows certain things that are wrong in our own thought life. इसलिए जब भी परमेश्वर हमारी सोच के जीवन में कुछ भी गलत दिखाते हैं तो हमें अपने आप को उसमें से शुद्ध करना है। Because our thoughts and our motives no other brother and sister can see. क्योंकि हमारे सोच और हमारे जो मकसद है कोई और भाई बहन उसे देख नहीं सकते। And God wants us to be pure inside. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंदरूनी भावों में हम शुद्ध रहें। So because we have a judgment day, we also have to fear the Lord and also walk in that fear of God. तो क्योंकि हमें एक न्यायासन का दिन है तो हमें परमेश्वर का भय रखना है और भय में ही उनके साथ चलना है। And on that day, nothing can be changed. और उस दिन कुछ भी बदल नहीं सकता। So that is why with that fear in mind and with that, so we can work out our own salvation. उस भय के साथ अपने मन में हमारे खुद के उद्धार के लिए हम काम कर सकते हैं। So which is the other second day, our second important day? और दूसरा महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? The other second important day, as Jesus said, is today. तो दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन यीशु मसीह ने जो कहा है वो आज का दिन है। Jesus always said about today. यीशु मसीह ने हमेशा आज के दिन के विषय में कहा है। Hebrews chapter 3, हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय में verse 7. उसका 7वां वचन। Therefore, just as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your heart as when they provoked me, as the day of trial in the wilderness. तो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। And then it says again in verse 15 also, today if you hear His word, do not harden your hearts when they provoke me. और 15 वचन में फिर से कहा है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। And verse 12 and 13 also it says, take care, brothers, lest in any of you there should be an evil, unbelieving heart in falling away from the living God. और 12 वचन है, भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए। So who is likely to fall away from the living God? कौन हो सकता है जो जीवित परमेश्वर से दूर हट सकता है? Well, says, take care, brothers. तो यहाँ पे लिखा है वचन में कि हे भाइयों चौकस रहो। It includes sisters. तो वो बहनों के विषय में भी कहा गया है। This means all disciples of Jesus Christ, it is quite possible that you and I can stray away and go away from the living God. तो ये लिखा हुआ है यीशु मसीह के जितने भी चेले हैं, हम और आप सभी के बारे में, कि अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो हम जीवित परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। Then that we can have an evil and unbelieving heart. उसके बाद हमारे अंदर एक बुरा और अविश्वासी मन हो सकता है। The meaning of evil and unbelieving heart. बुरा और अविश्वासी मन का क्या अर्थ है? The meaning is that God does not look after me properly. God is not taking care of me. तो उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखते, वो मुझे नहीं संभालते। I'm going through so many difficulties and problems. मैं बहुत सारे मुश्किल और परेशानियों के द्वारा गुजर रहा हूँ। And it says God is not good to me. और ये कहना कि परमेश्वर मेरे साथ अच्छा नहीं है, That is such an evil lie. तो बहुत ही बुरा एक झूठ है ये। God is good to unbelievers and enemies of God, but how much more God loves His own children. जब परमेश्वर जो है अविश्वासी और जो उनके शत्रु है उनके लिए इतना भला है, तो खुद के बच्चों के लिए वो कितना ज्यादा भला हो सकते हैं। And an unbelieving heart. एक अविश्वासी मन, That means we don't believe God. इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। Why it is so evil? तो इतना बुरा क्यों है वो? Because it says that God, you are the person who is not telling the truth. You are telling lies. तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तो ऐसे हो जो सच नहीं कहते, आप झूठ कहते हो। You know who is the person who tell lies? आपको पता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो झूठ कहता है? That is the devil. तो वो शैतान है। And you are telling God, you also become like the devil. तो आप कहते हो कि प्रभु परमेश्वर आप भी शैतान के जैसे हो गए हो। That is the most terrible thing to tell about God. वही सबसे बदतर चीज होती है परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। God tells, I care for you. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, You says God doesn't care for me. और आप कहते हो कि परमेश्वर मेरा ध्यान नहीं रखते। We have to repent from it, brothers and sisters. तो इनमें से हमें पश्चाताप करना है भाइयों बहनों। God cares for each one of us very well. तो परमेश्वर हम सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं।
He sends many trials in our life for our good. तो वो सारी परीक्षाओं को हमारे जीवन में भेजते हैं हमारी भलाई के लिए। He wants to get rid of us so that we may turn away from sin. तो वो इसलिए भेजते ताकि हम अपने पापों से मुड़ जाए, फिर जाए। And all our bad habits. हमारे जितने भी गलत आदत है उसमें से। As believers, as children, we have got so many bad habits. और विश्वासी होने के बावजूद भी, परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी हमारे पास बहुत सारी बुरी आदतें हैं। Just as our own children have so many bad habits. जैसे कि हमारे बच्चों के बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं। And as parents, we correct them. और जैसे माता पिता होने के नाते हम उनको सुधारते हैं। So, and the children don't like it at all. और बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। But then God also corrects us. परंतु परमेश्वर भी हमें सुधारते हैं। That's why you have to thank God. God, I thank you, Lord, that you're correcting me, that I may be changed. तो इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर धन्यवाद कि आप मुझे सुधार रहे हो, कि मैं बदल सकता हूँ। God is speaking to us every day. तो परमेश्वर हमसे प्रतिदिन बात करते हैं। Today also God is speaking to you. आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। To me. परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। We have to encourage us, everybody, day after day. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक दिन हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। So that is why during this Zoom meetings also we have got an opportunity to hear the word of God day after day. तो इसीलिए अभी जो जूम के मीटिंग के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन को सुनने मिलता है, एक एक दिन, हर एक दिन। So as long as it is still called today. जहां तक कि आज का दिन कहा गया है तब तक। Otherwise what happens? We will be hardened through the deceitfulness of sin. नहीं तो क्या होगा, हम जो है पाप के छल में आकर कठोर हो जाएंगे। We will keep on sinning but not knowing it. हम पाप करते जाएंगे परंतु उसका जो समझ है वो हमें नहीं आएगा। Just as we heard recently about one Christian leader who was living in immorality but did not know it because he had hardened his heart. और क्योंकि हाल ही में हमने सुना एक मसीही जो अगुवे उनके विषय में कि वो पाप में और विचार में जी रहे थे, परंतु उनको उस पाप के विषय में समझ नहीं आया क्योंकि उनका हृदय जो था कठोर बन चुका था। God is always speaking to us, but we must not harden our heart. परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते हैं परंतु हमारे हृदय को हमें कठिन नहीं करना है। We must take the correction. तो हमें उस सुधारने वाली बातों को अपने जीवन में लेना है। And we must be willing to change. और हमारे पास एक इच्छा होना चाहिए बदलने के लिए। If we don't willing to take correction and not willing to change, then our heart will become hard. अगर हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, वो उसको बदलना नहीं चाहते, तो हमारा हृदय जो है कठोर हो जाएगा। That is why many believers go far away from the Lord and they don't have fellowship with God at all. इसीलिए बहुत ज्यादा विश्वासी जो है परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं और उनका परमेश्वर के साथ संगति नहीं होता। They don't receive the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को नहीं पाते Because there is sin in their life. क्योंकि उनके जीवन में पाप है। But once they confess their sins and they repent, then they can turn back to God. और एक बार अगर वो अपने पापों को अंगीकार कर पश्चाताप कर ले तो वो परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। They say, from today onwards, Lord, I will listen to you. और उनको कहना है कि आज से प्रभु मैं आपकी बातों को सुनूंगा। I'm not going to listen to what my mother says and my father says and my relatives say. और मैं मेरी माँ मेरे पिताजी मेरे जो रिश्तेदार है वो क्या कहेंगे उसे मैं नहीं सुनूंगा। All the decisions in my life, I will do what your word says. और मेरे जीवन के जितने भी निर्णय वो सब कुछ आपके वाणी जो कहती, आपके वचन जो कहते उसके अनुसार मैं लूंगा। And then we'll come closer to the living God. फिर हम उस जीवित परमेश्वर के बहुत ही पास आ सकते हैं। Otherwise we'll be close to some dead God. नहीं तो क्या होगा, हम कोई मरा हुआ जो ईश्वर है उसके करीब होंगे। All the idols are all dead. और जितने भी मूर्तियां हैं सभी मरे हुए हैं। Can give us a lot of earthly pleasure, but there's no spiritual pleasure. बहुत सारा वो जो सांसारिक जो सुख है वो दे सकता है परंतु आत्मिक सुख वो नहीं दे सकता। We come to God because closer to God at the expense of our own selfish will. तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं हमारे खुद की स्वार्थी अभिलाषाओं का कीमत चुकाकर। That is why the apostle Paul said, I die daily. इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। Today is a day for me to die. तो आज का दिन मेरे लिए है मरने के लिए। Not physically, but to my own will. शारीरिक तौर पे तो नहीं परंतु मेरी स्वयं की इच्छा को। We heard when we die, the life of Jesus Christ is made manifest in our life. और जब स्वयं के लिए मर जाते हैं तो यीशु मसीह का जो चरित्र है, जीवन है, हमारे द्वारा प्रकट किया जाता है। Jesus said you have to take up a cross daily. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर चलना है। So this is a very important day. Every day we have to say, today is a very important day for me.
इसलिए हमें प्रतिदिन ये बात कहना है कि आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। I have to die to myself and live to do the will of God. मुझे अपने स्वयं के लिए मरना है और मुझे जीना है परमेश्वर की इच्छा करने के लिए। Jesus died daily. यीशु मसीह प्रतिदिन मरे। The Apostle Paul died daily. प्रेरित पौलुस प्रतिदिन मरे। You and me have to die daily. आपको और मुझे भी प्रतिदिन मरना है। And then we will become like Jesus and get the wisdom of God. फिर हम यीशु मसीह के समान बन सकते हैं और परमेश्वर की बुद्धि को पा सकते हैं। You say, Lord, I will number my days. Today, the 17th of February, is a very important day for me. और हम कहेंगे कि हाँ प्रभु, मेरे दिनों को मैं गिनूंगा। आज 17 फरवरी है, मेरे लिए जी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। Not because it is my marriage anniversary or my birthday or any other day. इसलिए नहीं कि ये मेरा शादी का दिन है या मेरा जन्मदिन है या और कोई दिन है इसलिए। This is the day we sing, the Lord has made, and I will rejoice and be happy in it. तो आज के दिन हमें गाना है, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और उसमें हम आनंदित रहेंगे और खुश होंगे। And when I come to tomorrow, I say, this is the day the Lord has made. I will die daily and I live for God. और कल हम आएंगे तो कहेंगे कि ये परमेश्वर ने दिन ये आज बनाया है और परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए मरूंगा और उनकी महिमा के लिए जीऊंगा। Every day is a new day. प्रतिदिन नया दिन होता है। A new day to live for God. एक नया दिन परमेश्वर के लिए जीने के लिए। A new day to experience the blessing of God. एक नया दिन परमेश्वर के आशीषों का अनुभव लेने के लिए। Let us value, brothers and sisters, every day that God gives us. इसलिए भाइयों बहनों, हर दिन जो परमेश्वर हमें देते हैं उन्हें बहुत ही अहमियत हम दे। So we see in this book of Ecclesiastes, सबोपदेशक में हम देखेंगे Ecclesiastes chapter 7, उसका 7वां अध्याय verse 1. पहला वचन। It says, a good name is better than a good ointment, and the day of one's death is better than the day of one's birth. अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। And it says that the day of one's death is better than the day of one's birth. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृत्यु का जो दिन है जन्म के दिन से उत्तम है। What is the meaning of the day of the death is better than the day of one's birth? तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है, ऐसे क्यों है लिखा हुआ? What do you think? आप क्या सोचते हो? That means the birthday is the death day, the day you die is better than your birthday. इसका अर्थ ये है कि जिस दिन आप मरोगे वो दिन आपके जन्मदिन से ज्यादा उत्तम है। That is how God sees things. तो ऐसे ही परमेश्वर चीजों को देखते हैं। But what do people in this world think? परंतु इस दुनिया के लोग कैसे सोचते हैं? Birthday is very important day. जन्मदिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। Child's birthday is very important. मेरे बच्चे का जो जन्मदिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। But here it says the day of the death is more important. परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि मृत्यु का जो दिन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। When is the day of your death? परंतु आपका मृत्यु का दिन कौन सा है? You don't know. हमें नहीं पता। Nobody knows. God doesn't tell anybody when you're going to die. किसी को भी पता नहीं है क्योंकि परमेश्वर किसी को नहीं कहते कि आप कौन से दिन मरने वाले हो। But God has shown us when you have to die. परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि हमें कब मरना है। What did the Apostle Paul say? प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? I die daily. मैं प्रतिदिन मरता हूँ। So when is your day of death? तो आपका जो मृत्यु का दिन कौन सा है? Today. आज का दिन। Every day is a day for you to die. तो प्रतिदिन आपका है आपको मरने के लिए। Die to your own will and do the will of God. आपके स्वयं की इच्छा के लिए मर कर परमेश्वर की इच्छा को करें। Not to do your uncle's will or your mother's will or your father's will, but do God's will. आपके अंकल का इच्छा नहीं करना है, आपकी माता का, आपकी पिता का इच्छा नहीं करना है, परंतु आपको परमेश्वर का इच्छा करना है। And then every day will be counted as God, as important, and you will grow in the ways of God. फिर हर एक दिन आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझोगे और परमेश्वर के राहों में आप बढ़ते चले जाओगे। Acts chapter, Romans chapter 8 says, all day long we are counted as sheep to be slaughtered. तो जैसे कि रोमियो के पत्री 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन हम जो है काटने के ले जाए जाने वाले उस भेड़ों की नए हमको गिना गया है। God is taking us to situations where God tells us, don't do your will here, do my will. तो परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों के द्वारा हमें ले जाते हैं जहां पर प्रभु कहते हैं कि अपनी इच्छा को अभी यहाँ पर मत करो, मेरी इच्छा को करो।
God doesn't kill us, but God doesn't force us. We have to take up the will and say, yes, Lord, I will die today. I will not do my will. I want to please you only. तो परमेश्वर इन बातों के लिए हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, परंतु हमें एक निर्णय लेना है कि प्रभु मैं खुद की इच्छा के लिए मैं मरूंगा आज, मैं अपनी इच्छा को नहीं करूंगा, आपकी इच्छा को पूरा कर कर आप ही को खुश करूंगा मैं. I've got a limited time in this world to live. तो इस दुनिया में बहुत ही कम समय बचा है मुझे जीने के लिए. I don't want to live like all the foolish people of this world. They keep on enjoying, eating, drinking, having a good time, and ultimately they die. तो मुझे मूर्ख लोग जैसे इस दुनिया में जीते हैं, जैसे खाते पीते बहुत ज्यादा मौज मजे करके और सब कुछ करके आखिरी में वो मर जाते हैं, वैसे नहीं जीना. In verse 2 it says in Ecclesiastes chapter 7, so it's better to go to a house of mourning than to a house of feasting, because that is the end of every man, and the living take it to heart. तो तबोपदेशक 7 अध्याय उसका दूसरा वचन, जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा. It is better to go to a funeral than to a birthday party. तो जन्मदिन के उस पार्टी में जाने से अच्छा मृत्यु के घर में जाना अच्छा है. Or better to go to a place where people have died rather than go to a wedding. तो एक शादी के घर में जाने से अच्छा ऐसा है कि जहाँ पे लोग मर जाते हैं वहां पर हम चले जाएं. So when we go to a place where a person has died, we know that one day I'll also have to die. क्योंकि हम जब एक मृत्यु के घर में हम जाएंगे तो हमें भी पता होता है कि एक दिन तो हमें भी मरना है. We will be careful, Lord. One day I have to take heed of my life and I have to live it more carefully. तो हम जो है बहुत ही सावधान होकर कहेंगे कि प्रभु हर एक दिन मुझे बहुत ही सावधानी से ध्यान से जीना है. Some fear of God will come into my life. और परमेश्वर का जो भय है मेरे जीवन में कुछ तो आ जाएगा. But if I go to a birthday party and wedding party and all the other parties, I think that I'm going to live for another 100 years. अगर मैं कोई जन्मदिन के घर में या तो फिर शादी मनाने की उस जगह पे चला जाऊंगा तो मेरे सोच में ये होगा कि मैं और 100 साल ज्यादा जीऊंगा यहाँ पर. But like Jesus told the rich man who had such a lot of money, he said, now I've got lots of money, I will just eat, drink and be happy. जैसे कि यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति के बारे में कहा, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था तो वो कहने लग गया, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं खाऊंगा पीऊंगा और मौज करूंगा. God told you, fool, today you are supposed to die. परमेश्वर ने कहा उसे, हे मूर्ख, आज तो तू मरने वाला है. And what happened to all the wonderful things that you have got? Somebody else will take it. और जितने भी अच्छी अच्छी चीजें जो तुम्हें मिली है वो कोई और लेके चला जाएगा. So when we live for the Lord, we will keep all our treasures into heaven. तो क्यों जब हम परमेश्वर के लिए जीने लगेंगे तो हमारा जितना भी खजाना होगा सब कुछ हम स्वर्ग में रखेंगे. All these things we will do not just to please ourselves and to enjoy ourselves here, but to say, Lord, everything be done to your glory, and that the kingdom of God should be established in my life and the lives of other people. इसलिए जो कुछ भी हम करेंगे हमारे खुद की इच्छा के लिए, खुद को खुश करने के लिए नहीं करेंगे, सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने के लिए और वो प्रकट होकर परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए करेंगे. So many believers also now just enjoying like the people of this world are enjoying. तो बहुत सारे विश्वासियों को भी आप देख लीजिए, जैसे ही दुनिया के लोग मौज मजे करते हैं वैसे वो भी मजे करते हैं. They are not interested in reading the Bible, not interested in praying. They just want to have a good time, good food, dancing, and all the other jokes and laughter. तो वो जो है बाइबल पढ़ने में या प्रार्थना करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो अच्छा एक समय बिताना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं और बहुत खुशी हंसना मजाक करना ये सब कुछ चाहते हैं. It says in verse 4 in chapter 7. 7वां अध्याय का 4 वचन में लिखा है, The mind of the wise is in the house of mourning, while the mind of the fools is in the house of pleasure. सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 4वां वचन, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वाले के घर लगा रहता है. Yeah, a wise man will always say, Lord, there are a lot of things to improve in my life. I want to, sorry for the wrong things that I've done. I want to change my ways. तो बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा कि मेरे जीवन में बहुत सारी गलत चीजें हैं, वो मुझे सही करना है, मैं क्षमा मांगता हूँ उन सारी चीजों के लिए और मैं मेरी जो मार्ग है उसे मैं बदलना चाहूंगा. But the mind of fools is in the house of pleasure, means they just want to enjoy, have a good time in everywhere and good time in the church also. तो परंतु मूर्ख का मन आनंद के घर में होने का अर्थ है कि वो जो है हर जगह पर अच्छा समय चाहते हैं, कलीसिया में भी हर जगह पर अच्छे समय की आशा में रहते हैं. So in many churches there are a lot of fools. तो बहुत कलीसिया में मूर्ख बड़े हैं. They don't want to hear words of correction and because that they mourn, but they say, no, I want to just have a lot of entertainment, good music, and something that will please me.
तो वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें सुधारे और वो अपने जीवन के लिए रोए। वो बोलते हैं कि मुझे एक अच्छा मौज मजे मनोरंजन का समय चाहिए, जो मुझे खुश करने वाला जो समय है वो चाहिए। And I don't like all these ordinary food that you're serving in the church meetings. I want some special food. और आप जो कलीसिया में साधारण सा जो खाने का प्रबंध करते हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई खास खाना चाहिए। I want people who are very educated and very cultured with me. I don't like all these ordinary people. और मैं जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे स्तर पर रहते हैं, वैसे लोगों को चाहता हूँ। साधारण लोगों को मैं पसंद नहीं करता। But you know, all these ordinary people, all these educated and rich people are going, or most of them are going to hell. तो आपको पता है जितने भी अच्छे पढ़े लिखे और जितने धनवान लोग हैं, उनमें से ज्यादा करके लोग नरक की ओर जाते हैं। Many of them live in secret sin. बहुत सारे लोग उनमें से गुप्त पापों में जीते हैं। But our fellowship should be with those who fear God. तो हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो परमेश्वर से डरते हैं। They mourn over their sins, तो उनके पापों के ऊपर वो रोते हैं and God comforts them. और परमेश्वर उन्हें आश्वास देते हैं And they repent from their sins. और वो उनके पापों से पश्चाताप करते हैं। So that is very important in our own life. The most important day is today and the judgment day. तो यही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस दो दिन है। वो आज का दिन है और न्यायासन के सामने हमारा खड़े होने का दिन है। Some people want to celebrate their birthdays very much. तो बहुत सारे लोग जो है अपने जन्मदिन को बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। It's good to be happy on the birthday. अपने जन्मदिन पर खुश होना अच्छी बात है। The Bible never tells about Jesus' birthday or Paul's birthday or Peter's birthday. Any godly people did not celebrate their birthday. परंतु बाइबल में यीशु मसीह का जन्मदिन या पौलुस का या कोई भी परमेश्वर की जो जन है, किसी का भी जन्मदिन बनाया हुआ नहीं दिखाई देता है। The Bible only the kings and the corrupt kings only celebrate their birthday. तो बाइबल में सिर्फ जो भ्रष्ट राजा लोग थे उन्होंने ही अपने जन्मदिन को मनाया हुआ दिखाता है। We remember Jesus. We don't know when Jesus' birthday is, but we know when he died, the day he died. तो हमें पता नहीं है कि यीशु मसीह का जन्मदिन कौन सा है, परंतु हमें ये बात पता है कि यीशु मसीह कब मरे। It is important that he died for our sins. That's why we are all set free and sitting in the meeting here. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो हमारे पापों के लिए मरे और हम स्वतंत्र हो गए, इसीलिए हम इस सभा में कलीसिया में अभी बैठे हैं। But now the current things in the world, everybody is enjoying birthday. तो हाल ही में जो भी चल रहा है दुनिया में, सभी लोग अपने जो जन्मदिन है उसमें आनंदित होते हैं। It is not wrong to enjoy birthday, तो अपने जो जन्मदिन है उसको मनाना गलत नहीं है, provided we don't celebrate it like the unbelievers. तो हम जो है अविश्वासी जैसे उसको मनाते हैं वैसे हमें नहीं मनाना है। We're only interested in laughing, joking, and eating and drinking. तो वो सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं बहुत मजाक उड़ाने में, खाने में, पीने में और मस्ती करने में। We are thankful to God that He has given us a date that to be born. Let us thank Him. तो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने एक दिन हमें दिया है, तो हमें उनको धन्यवाद देना है उस दिन के लिए। So we can be happy for every day, but these 2 days we must not forget the day, every day is a new day for us. तो ये जो दिन है, हर दिन हम प्रतिदिन जो हम जीते हैं, तो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि ये जो दिन है आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And let us not forget the judgment day. और हमें कभी भी न्यायासन का जो दिन है जहाँ पे हमें खड़े होना है, उस दिन के बारे में हमें कभी ना भूलें। We must not be ashamed on that day. तो हमें उस दिन जाके शर्मिंदा नहीं होना है वहाँ। Before all the people we have to stand. तो वहाँ पे सब लोगों के सामने हमें खड़ा होना है। So the Lord will give us grace on that day on every day when we are cleansing ourselves, then we will have no regrets on that final day. और जब हम प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह पाकर अपने आप को शुद्ध करते जाते हैं, तो उस आखिरी दिन में न्यायासन के सामने हम कभी भी वहाँ पे हम पछतावा नहीं करेंगे। So all the other days which are there, this day, Teachers' Day, Mother's Day, Brother's Day, Father's Day, Mother's Day, are not so important for us. तो जितने भी बाकी के जो दिन है, भाइयों का दिन या माताओं का, पिताओं का या मित्रों का दिन, ये जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। We say yes, it is okay, and we will be happy and joyful. But every day is important. Every day we'll appreciate people. Every day we'll do good. Then we have no tension at all of remembering any day. तो ये सारे दिन तो ठीक है, अच्छे हैं, परंतु प्रतिदिन हम अच्छे करते जाएंगे, लोगों के लिए भला करते जाएंगे, हम खुश रहेंगे और हर दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसे समझकर हम जीते जाएंगे। This is how Jesus lived. जैसे कि यीशु मसीह ने जिया। This is how the Apostle Paul and all the wonderful apostles and all lived. ऐसे ही प्रेरित पौलुस से जितने भी अच्छे जो प्रेरित थे, सभी लोगों ने ऐसे ही जीवन जिया। They did not live for worldly pleasure. तो ये दुनिया के सुख विलास के लिए वो नहीं जिए। They said, whatever we do, we want to do for the glory of God.
उन्होंने कहा जो कुछ भी हम करेंगे सब कुछ हम परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। So, dear brothers and sisters, let us remember these two important days in our own life. इसलिए भाइयों बहनों, ये जो दो महत्वपूर्ण दिन है हमारे जीवन के, इसे हम याद रखें हमेशा। As Moses said, let us number all our days, जैसे कि मूसा ने कहा कि हमें हर दिनों को हमारी गिनना है, and that let us present to God a heart of wisdom. और परमेश्वर के सामने हमारा जो बुद्धि का जो हृदय है वो हमें रखना है। So let us pray, dear brothers and sisters. प्रार्थना करेंगे भाइयों बहनों। Father, thank you, Lord, for this day. परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि हमको इस दिन प्रतिदिन आप हमको दिन देते हैं कि आपकी तरफ हम आए, Lord, that we draw near to you. And you said, if we draw near to you more and more, you will draw near to us more and more. Lord, in the past, Lord, very time पे हम लोग आपसे इतना दूर हुआ है प्रभु जी। आपने मौज मजा के लिए दिया है, पैसे के लिए दिया है प्रभु जी, और टाइम बहुत बर्बाद किया। लेकिन प्रभु, आपकी इच्छा के लिए हमको जीना है प्रभु। हमारा पुराना जीवन विश्वासी में होने के नाते भी तो इतना खराब जीवन जिया है, चिल्लाया, कुरकुर किया प्रभु, इतना सारा कंप्लेन भी किया लॉर्ड। प्रभु, हमको माफ कर दे लॉर्ड, हमको ऐसा जीवन नहीं जीना, आपके जैसा जीना चाहे प्रभु जी। तो हर दिन होता है आपका भलाई, आपके लिए महिमा की है, बाकी लोगों का भलाई करना है। We want to glorify your name, we want to please you Lord, we want to be good Lord, be filled with the Holy Spirit every day and be filled with the fruit of the Spirit, that is the character of Lord. हालेलुया। प्रभु की गुण से हम मुझे पर हम भरोल प्रभु जी। हमारा बहुत टाइम हम लोग वेस्ट किया लॉर्ड, बट लॉर्ड जीसस हेल्प अस लॉर्ड टू लिव फॉर यू लॉर्ड। फिल अस विद द स्पिरिट, पवित्र आत्मा से एक जन को भर दो प्रभु जी। तो जो कुछ भी हम करें लॉर्ड, आपके महिमा के लिए हम करें लॉर्ड। हमारा बोलना, सुनना, सोचना और जो कुछ भी हमारा काम काज प्रभु, हमको एक घंटे घंटे हमको मालूम नहीं इतना जल्दी ये क्षण चले जाते हैं लॉर्ड, लेकिन हमारा गीत, आपका गीत और आपका धन्यवाद करने के लिए हमको ये मौका दे। हमको पैसा नहीं बनाना है प्रभु जी, पैसा बन भर के लॉर्ड हम मर सकते हैं प्रभु जी, लेकिन आपका महिमा जो भी आपको खाना पीना दिया है लॉर्ड, हम भरपूरी से आपको दिया है प्रभु जी। हमको संतुष्ट रहने के लिए प्रभु हमको कृपा दे रही थी। थैंक यू लॉर्ड, आप जरूर करेंगे कि हमारे जीवन में आपने उत्सुकता डाला है, आपने डिजायर डाला, आशा भी डाला है प्रभु जी। जरूर हमारा जीवन में जरूर कार्य काम करेंगे। यीशु के नाम में मांगते हैं, हालेलुया, आमीन।